Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You will be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss what is an adjective clause. इससे पहले हमने define किया था, जाना था what is clause and what is the difference between sentence and clause. And after that, we discussed the two categories of clauses, independent clauses and dependent clauses. आज हम पढ़ेंगे adjective clause, which is very essential clause for you all. So let's get started. Clause adjective clause. As we studied that dependent clause has three subparts, subcategories: noun clause, adjective clause, and adverb clause. So what is an adjective clause? It's a dependent clause. Dependent clause mean that it cannot stand alone is a man sentence. आपने अगर इसको use करना है, so you have to connect this adjective clause or this dependent clause with the independent clause. इसको आपने independent clause के साथ connect करके, जब आप इसको connect करेंगे, combine करेंगे, then it will make sense. Without independent clause, it does not make any sense. इसको adjective clauses भी बोलते हैं और बहुत सारे ग्रामर बुक्स में या ग्रामरियन इसको रिलेटिव क्लॉजेस भी बोलते हैं. रिलेटिव क्लॉजेस because they start with the relative pronouns such as who, whom, whose, which, that, when, where, why. आगे हम इसको पढ़ेंगे. So adjective clause and relative clauses. So what is an adjective clause? A group of words which has subject verb combination and acts as an adjective in a sentence. It has subject verb combination जिस तरह दूसरे dependent clauses में होते हैं, subject verb combination, and but it acts like an adjective in a sentence. Adjective clause को समझने से पहले you need to know what is an adjective. What is the function of an adjective? So adjective modifies or describes a noun, identifies or modifies a noun or pronoun. किसी noun या pronoun के लिए जब हम दूसरे words use करते हैं जो उस noun को modify करे, explain करे, describe करे, उसके बारे में हमें description दे दी, उसको हम बोलते हैं adjective. For example, मैं कहता हूँ हफ्सा is a tall girl. So in this sentence there are two nouns. One is Hafsa, which is the subject of the sentence, and girl is ये एक noun है, ये common noun है, Hafsa proper noun है. इस noun से पहले मैंने एक लफ्ज़ use किया है tall, which explains, modifies this girl, that how she's tall. So tall जो है इस गर्ल को मॉडिफाई करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव. तो ये तो वन वर्ड एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्लास किसे बोलते हैं? कि कंप्लीट सेंटेंस, जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, वो एक सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है. तो जब पूरा क्लॉज एक्ट करे एज एन एडजेक्टिव, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ हफ्सा who is a tall girl, who is a tall girl plays volleyball. Clear class? So मेरा सेंटेंस यहाँ तक है. जो मेरा इस सेंटेंस के अंदर ये कंप्लीट सेंटेंस है. इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. इस एक सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है. मेरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो ये है, हफ्सा प्लेज वॉलीबॉल. क्लियर? हफ्सा प्लेज वॉलीबॉल. दिस इज independent clause because it conveys clear meaning. Clear? It can stand alone as a man sentence. अच्छा, इस हफ्सा को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ लफ्ज़ों का सहारा लिया है. Who is a tall girl? जो एक लंबी लड़की है, हु इज़ अ टॉल गर्ल, तो ये पूरा जो सेंटेंस है
ये इस हफ्सा को मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। क्लियर? सो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स जो है जिसमें ये हु जो है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इज में एक लिंकिंग वर्ब है और बाकी इसके साथ उसके अपने मॉडिफायर्स हैं। तो इस क्लास को, इस सब पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, इस क्लास को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लास जो है ये एक नाउन को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, एक नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो टॉल है, हफ्सा इज़ अ टॉल गर्ल, ये भी एक एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। ये पूरा क्लास जो है ये भी एक एडजेक्टिव है जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये जहन में याद रखें कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है दैट इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। इस सेंटेंस को जिस तरह मैंने लिखा, हफ्सा इज़ अ टॉल गर्ल, हफ्सा हु इज़ अ टॉल गर्ल प्लेज वॉलीबॉल, यहाँ पे मैं एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज़ कर सकता हूँ। हफ्सा अ टॉल गर्ल प्लेज वॉलीबॉल। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज यूज़ किया है। क्लियर? सो हफ्सा, हु इज़ हफ्सा? अ टॉल गर्ल, जो एक लंबी लड़की है, प्लेज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पता चले कि एक वन वर्ड एडजेक्टिव, पूरा क्लॉज एंड फ्रेज। सो अभी हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन अ सेंटेंस। आपके सामने मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज इसमें कौन सा जो है नेसेसरी है, ज़रूरी है नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या नॉट नेसेसरी, या ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल क्लास, अगर मैं बोलूँ अ वर्ड is called, a word is called a verb. A word is called a verb. एक लफ्ज़ को वर्ब कहा जाता है। सो ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली कंप्लीट है, बट द सेंस इज़ नॉट श्योर। द सेंस, इसका जो सेंस है दैट इज़ नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि कौन सा वर्ब जो है उसको वर्ब कहा जाता है। तो इस लफ्ज़ को, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो लफ्ज़ है और वर्ड है, इसको मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक दूसरे डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी जिसको मैं एडजेक्टिव क्लास कहूँगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव क्लास इस लफ्ज़ को, इस वर्ड को, इस नाउन को डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल क्लास मैं बोलता हूँ अ वर्ड which or that, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंस में। a word which shows an action, a word which shows an action and or state of being is called a verb. अभी आप अंदाज़ा लगाए। Look at the first sentence. A word is called a verb. एक लफ्ज़ को verb कहा जाता है. So this is not a complete sentence because अगर मैं बोल a word is called a pronoun, a word is called a noun, वो भी ठीक है, लेकिन इस word को explain करने के लिए, modify करने के लिए, identify करने के लिए मुझे एक class का सहारा लेना पड़ा, which shows an action or state of being. यहाँ तक इसमें जो which जो है ये question word है, ये mean subject word है, which ये shows इसमें verb है और बाकी इसके साथ इसके दूसरे modifiers है. So a word, अच्छा एक लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़? which shows an action, जो action को show करता है, और state of being को show करता है, is called a verb, उसको वर्ब कहा जाता है. नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के लिहाज से भी कंप्लीट है, मीनिंग वाइज भी कंप्लीट है. सो दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है,
अच्छा, अगर इसको मैं स्किप कर दूं, मैं निकाल दूं इसको, तो क्या मीनिंग कंप्लीट रहेगा? नो. सो दिस क्लास इज वेरी मच नेसेसरी और देयर. ये क्लास जो है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, मैं दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिख लेता हूं. अगर मैं बोलूं वर्ब which shows an action or state of being or state of being is the heart of a sentence. अच्छा, अब देखिए, मैंने लिखा verb. The sentence is about verb. The subject is verb. Clear? Verb जो है, अच्छा verb क्या है? Which shows an action or state of being, जो action और state of being को express करता है, is the heart of a sentence. एक sentence का जो दिल होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वर्ब जो है वो सेंटेंस का क्या हो, दिल होता है, हर्ट होता है, स्ट्रेस पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखें, वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज वर्ब, अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. क्लियर? तो इस वर्ब के बाद ये जो क्लॉज मैंने लगाया है, जो होली सोली इस वर्ब को मॉडिफाई करता है, अगर इसको मैं स्किप भी कर दूं, निकाल भी दूं, तब भी मीनिंग कंप्लीट रहेगा. मीनिंग मेरा ये है, वर्ब इज द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब इज द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस. अगर मैं अगर लिखूं, वर्ब इज द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब किसी भी जुमले का, सेंटेंस का दिल होता है. दिस कंप्लीट सेंटेंस. अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने मॉडिफाई किया है, वर्ब को मैंने मॉडिफाई किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है. अच्छा, वर्ब कौन सा? विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है, इज द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो अगर इसको अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस क्लास को मैं सेंटेंस से स्किप भी कर दूँ, निकाल भी दूँ, तब भी मीनिंग क्लियर है, तब भी the meaning is very much clear. So we do not, this clause is not necessary. ये क्लास जो है ये यहाँ पे necessary नहीं है. अभी मैंने ये दो बातें आपके सामने रखी. इस दो बातों को मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करने के लिए इस एडजेक्टिव क्लॉज को टू टाइप्स में मैं डिवाइड करता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए. एडजेक्टिव क्लास को हमने टू में डिवाइड किया है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक को मैं बोलूँ नेसेसरी, जो लाजमी है, क्या है क्लास? लाजमी. दूसरे अगर मैं नाम दूँ नॉट नेसेसरी, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है. तो अगर इसको मैंने वैसे लिख दिया, अदर ग्रामेरियंस दे शायद कि उससे इत्तेफाक ना करे, लेकिन मैंने आपको सिंपली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताएं, नेसेसरी एंड नॉट नेसेसरी. नेसेसरी किस लिए? कि ये नाउन के साथ होना चाहिए, नाउन की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. नॉट नेसेसरी अगर ये ना भी हो तब भी मीनिंग क्लियर है. अच्छा, इस जो नेसेसरी वाला है, इसको वी डू नॉट यूज कॉमा. क्लियर? नो कॉमा. इसके साथ हम कॉमा यूज नहीं करते. क्लियर? और जो नॉट नेसेसरी है, वी यूज कॉमा. हम कॉमाज यूज करते हैं कि इसको हम स्किप भी कर सकते हैं. क्लियर? इस जो नेसेसरी है, इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉज. क्लियर? ये जो नॉट नेसेसरी है, इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग. इसको दूसरे नामों से भी याद किया जाता है. डिफाइनिंग को हम आइडेंटिफाइंग भी बोलते हैं. क्लियर? आइडेंटिफाइंग क्लॉज. और इसको नॉन डिफाइनिंग को मॉडिफाइंग क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि दे जस्ट मॉडिफाई, दे डू नॉट आइडेंटिफाई द नाउन, दे जस्ट मॉडिफाई. मॉडिफाई मीन कि नाउन के बारे में कुछ और अल्फाज कहते हैं. क्लियर? इसको दूसरे लफ्ज, इसको
जो नेसेसरी, इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है, रिस्ट्रिक्टिव। क्लियर? क्योंकि मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। और जो नॉट नेसेसरी, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी कहा जाता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव। क्लियर? इस तरह जो नेसेसरी है इसको एसेंशियल क्लॉज भी कहा जाता है। ये सारे नॉर्म्स है, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। और इसको नॉन एसेंशियल्स भी कहते हैं, नॉन एसेंशियल्स। क्लियर क्लॉज? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो ये अभी हम बात करेंगे कि जो नेसेसरी है मीन दे आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट, दे यूज टू डिफाइन योर जो वर्ड है उसको डिफाइन करता है, इसलिए ये ज़रूरी है। और इसके साथ हम कॉमाज यूज़ नहीं करते, बस डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, क्योंकि इसको हम स्किप नहीं कर सकते। जिसको आप कॉमास हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो नॉन डिफाइनिंग है या जो डिमोडिफाइंग क्लॉज है उसके आगे पीछे हम कॉमास लगाते हैं। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, अगर स्किप भी हम करें तो उसकी मीनिंग में, सेंटेंस की मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। क्लियर? द सेम आइडेंटिफाई, इसको जो है इसके साथ जो डिफाइनिंग क्लॉज है इसके साथ हम कॉमास यूज़ नहीं करते, नॉन डिफाइनिंग के साथ हम कॉमास यूज़ करते हैं। नाम इसकी इस तरह है, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, इसको आइडेंटिफाइंग, मॉडिफाइंग, restrictive and non-restrictive, essential and non-essential. Clear? तो ये तो जस्ट इसके नाम है, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास, मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस इसलिए कहते हैं, दे स्टार्ट विद द रिलेटिव प्रोनाउंस सच एज हु, क्लास हु, whom, whose, which, that, etc. Where भी हम यूज करते हैं, where, etc. तो क्लास इसमें आप ज़हन में याद रखिए जो who है and which and that, इसको हम एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, subject pronoun, subject pronoun. Clear class? Mean they can also, they have this both for, they also use as a conjunction to combine two sentences, and they also use, we also use them as the subject pronoun, subject pronoun. Clear? अच्छा, इसकी who and whom and whose and where जो है इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हमने ज़रूर कोई सब्जेक्ट लगाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, तलहा हु इज़ अ टैलेंटेड स्टूडेंट इज़ माई सन। तलहा हु इज़ अ टैलेंटेड स्टूडेंट, तो यहाँ पे हु इज़ अ टैलेंटेड स्टूडेंट में आपको कोई एक्टिव सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, हु यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्लियर? फॉर विच और दैट में आप कोशिश करें, विच को आप यूज़ करें मॉडिफाइंग क्लासेस के लिए, एंड दैट को आप यूज़ करें आइडेंटिफाइंग क्लासेस विच इज़ नेसेसरी। क्लियर? ये एक ऐसे ट्रैक है। एंड whom तो हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल whom I met yesterday, the girl whom I met yesterday was from Peshawar. Clear? तो यहाँ पे whom को मैंने यूज़ किया एज फॉर द ऑब्जेक्ट। तो whom के लिए, whom के बाद आप whom आप यूज़ करें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए। whose जो है इट शोज पोजेशन, ये जिस चीज़ की भी पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, द कार whose front door is broken carried out by the people. The car whose front door is broken. So mean that front door belongs to that car. That is the possession of the car. So whose को हम इस तरह यूज कर सकते हैं। Clear class? The boy who is in my class is my friend. वो लड़का जो मेरे क्लास में है, द बॉय हु इज इन माई क्लास इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो मेरे क्लास में है वो क्या है, मेरा दोस्त है। क्लियर?
और द बॉय हु इज़ इन माई क्लास इज़ असलम, जो लड़का मेरे साथ क्लास में पढ़ता है, जो मेरा दोस्त भी है, वो असलम है। तो क्लास यहाँ पे जो मैंने इस क्लास को यूज़ किया है, ये इम्पॉर्टेंट है इस लड़के को समझने के लिए कि हु इज़ माई फ्रेंड, द बॉय, वो लड़का। क्लियर? यहाँ पे मैंने द यूज़ किया है, सो मीन इस बॉय को मैंने क्या है, स्पेसिफिक क्या है, इसको मैंने स्पेशल केस बनाया है। क्लियर? अगर मैं यूज करूँ असलम हु is in my class is my best friend. Clear class? Aslam who is in my class. Aslam तो ऑलरेडी असलम पता है हम सबको कि आपके क्लास में असलम है, तो ये भी एक रिलेटिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, लेकिन यहाँ पे इसको ये मॉडिफाई करता है, जस्ट असलम को मॉडिफाई करता है। इसके साथ मैंने कॉमास यूज़ किए हैं, इसको यू कैन स्किप, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। द मीनिंग इज स्टिल वेरी क्लियर। असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, असलम मेरा अच्छा दोस्त है। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, the book that I have written on English grammar, or related to English grammar, is very easy. Clear class? Independent class मेरा ये है, the book is very easy. Which book is very easy? That I have written an English grammar. जो English grammar के ऊपर जो मेरी किताब है वो बहुत आसान है। So this class, that class, ये क्या है? एक necessary class है, एक ज़रूरी class है, essential class है। I didn't use any comma. अगर मैं इस तरह बोलूँ, my English grammar book, my English grammar book, which is about English grammar, is very easy. क्लियर क्लास? यहाँ पे देखें, मेरा सेंटेंस है माई इंग्लिश ग्रामर बुक। ऑलरेडी नेम सजेस्ट दैट द बुक इज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। माई इंग्लिश ग्रामर बुक विच इज़ अबाउट इंग्लिश ग्रामर, जो अंग्रेजी ग्रामर के बारे में है, इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। सो दिस क्लास को जिसको विच क्लास बोलते हैं, नॉन एसेंशियल क्लास है, जिसको मैंने कॉमर्स से सेपरेट किया है, दैट यू कैन स्किप दिस क्लास, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल क्लास। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में क्लास से रिलेटेड हमने कुछ बुनियादी बातें सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। आई यूज़ सन ग्लासेस ड्यू टू माई आई सर्जरी मैंने की हुई है। आप मेरे लिए, मेरे सेहत के लिए, सारे मुसलमानों, जितने मुसलमान हैं, जितने बीमार हैं, उन सब के लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।